channel Talent Explorer Academy. Hello students, welcome to my YouTube channel Talent Explorer Academy, my virtual classroom. Okay, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हो इस चैनल को तो क्विकली सब्सक्राइब करो और प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट. And today's chapter is finding missing number. Finding missing number. In most of the Olympiad exams, अगर आप देख लो सॉप का जो आपका इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड आईएमओ, सिल्वर जोन का आईओएम और एनएसओ एटसेट्रा एटसेट्रा, एनी एग्जाम में मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन आ जाता है फाइंडिंग मिसिंग नंबर और मिसिंग कैरेक्टर. ओके, लेट्स टुडेज प्रैक्टिस चैप्टर इज मिसिंग नंबर और फाइंडिंग मिसिंग कैरेक्टर. गॉट इट? लेट्स स्टार्ट द क्लास. Are all of you prepared for Olympiad exams? So, all the best to hit your target. Let's start the class. First question. Which one will replace the question mark? There are 3 figures. In the first figure, there are 4 numbers outside the circle, like there is 2, 1, 4, 3. So, we have to simplify in some manner in order to get the between number. मतलब बाहर का जो नंबर है आप लोगों को ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा जैसे वो अंदर का वाला नंबर जो आंसर आएगा. So in this question there is a pattern. When we add all the outside number 1 plus 2 plus 3 plus 4, we get the middle number 10. So can it fulfill the pattern in second figure? Let's check. That means 1 plus 3 plus 5 plus 8, it will become 17. ये 17 हो जाता है. ओके, अगर ये पैटर्न लास्ट फिगर में फॉलो करेगा then we will find the answer. 1 plus 4 plus 6 plus 9. That means 9 plus 6 15, 5 20. So it will follow. That means in first figure between number is 10, second 17, and in third figure between number is 20. So which is the correct option? Option B. That means your answer equal to 20. That is option B. Got it? Okay. Let's do the second question. Which one will replace the question mark? There are 2 triangles in this figure. First triangle, this one, and the second triangle, this one. And 3 outside number in this triangle. So first try to solve. Either it's 4 plus 8, 12, 12 9 108. Oh, it's easy method. That means sum of first 2 number, 4 plus 8, multiplied by 9. That means 12 multiplied by 9 is the between number 108. Let's put in last question or last answer. That means first 2 numbers should be added. पहले जो दो नंबर होता है लेफ्ट एंड राइट में उसे ऐड करेंगे, देन मल्टीप्लाई करेंगे जो नंबर बिलो में है. दैट मीन्स 9 मल्टीप्लाइड बाय 12 इक्वल टू 108. सो वी गेट द आंसर सी. ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर. गॉट इट? अब और एक क्वेश्चन पे जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. देयर आर 3 ट्रायंगल्स इन दिस क्वेश्चन and some outside number, some inside number. That is triangle 1, and that is triangle 2, and that is triangle 3. So first try to solve and follow a pattern. In this question, if we subtract 10 minus 4, so it will become the between number 6. In the right hand side, 18 minus 4, it will become 14. So in the same way, below number 18 minus 10, that will be 8. अगर हम जो लेफ्ट राइट नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बिटवीन नंबर पाते हैं. ओके, इन द सेकेंड फिगर दैट मीन्स 22 माइनस 8 इक्वल टू 14. सो 22 माइनस 14 इक्वल टू 8. सो 11 माइनस 8 14 माइनस 8 इक्वल टू 6. देन वी हैव टू फॉलो द सेम पैटर्न इन द थर्ड फिगर ऑल्सो. दैट मीन्स 11 माइनस 5 लेफ्ट हैंड साइड 11 को अगर हम 5 से सब्ट्रैक्ट करते हैं 11 माइनस 5 होता है 6.
you get the between number, correct. In below 15 minus 11 equal to 4 आता है, वो भी between वाला नंबर है. In the same way we do the last number. That means, and the last number is 15 minus 5 equal to 10, and 10 is fulfilling the answer of that question mark. So option C is your correct answer. Got it? Okay. चलते हैं और एक क्वेश्चन पे. In this type of question, there is a row-wise formula. There is a row-wise formula. That means ये तीनों नंबर लेके आपको 2 2 1 को ऐसे सिंप्लीफाई करना है जैसे आपको 3 मिलेगा. सो कैसे करेंगे? अगर हम 2 + 2 4 -1 कर देते हैं, 3 आ जाता है. बट 2 2 जा 4, 1 जा भी 3 आ जाता है. सो इसमें दो पैटर्न है. बट सेकंड में कौन सा वाला पैटर्न फॉलो करता है? सेकंड में अगर हम 5 4 जा 20 -5 करते हैं 15, बट 5 4 ऐड करके 9 - 5 होता नहीं है 15. So we will follow the pattern. That means 2 multiplied by 2, product of first two number, -1 will be the last answer, 3. In the second row, 5 into 4, it will become 20. 20 minus 5 will be the 15 last number. देखिए लास्ट नंबर आ जाता है वो सिंप्लीफाई में, ये वाला नंबर. So in the same way we follow the next pattern. That means 5 multiplied by 5. How many? 25. minus 3 आ जाता है आपका 22, because 5 into 5 equal to 25, minus 3 आ जाता है आपका 22. So which will your answer? So answer is 22. That means the option D will be your correct answer. Got it? Okay. अब चलते हैं और एक क्वेश्चन पे. ये वाला क्वेश्चन जो होता है, या इधर क्यूबिक पैटर्न और स्क्वायर पैटर्न आता है. बट हमें देखना है कि ये स्क्वायर में आता है या क्यूबिक में आता है. मान लीजिए आपका ये नंबर हो गया 2. सो 2 का स्क्वायर कितना आता है? 4. सो 4 इज इन द ऑपोजिट साइड ऑफ दैट नंबर. और 1 का स्क्वायर कितना आता है? 1. तो ये आ जाता है आपका ऑपोजिट आ जाता है 1. मगर ये सब में फॉलो करना चाहिए. लाइक मीन्स 8 स्क्वायर इक्वल कितना आ जाता है? 64, विच इज द ऑपोजिट नंबर. एंड 5 स्क्वायर equal to 25 also, that answer. That means square pattern. Which pattern? Square number. So final answer, हमारा आंसर कितना हो जाता है? ये जो नंबर है 1, ये क्वेश्चन मार्क वाला हम फाइंड करेंगे. ओके. सो दैट मीन्स 1 स्क्वायर equal to 1 will be your answer. Option A is the correct answer. So answer is 1, which is option A. समझ में आया सबको? ओके. चलते हैं दूसरी क्वेश्चन पर. ये आपका क्रॉस सेक्शन जैसा है, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे सॉल्व करते हैं ना, वैसे ही. दैट मीन्स ये चारों नंबर लेके, मतलब 10 9 14 7, ये सब को लेके हम ऐसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा जैसे बिटवीन वाला नंबर 20 आएगा. अगर मान लीजिए हम सबको ऐड कर देते हैं, लाइक 10 + 9 19, 19 7 आ जाता है 26, 26 + 4 30 + 10 कितना आ जाता है? 40. और 40 का डिवाइडेड बाय 2, और 40 को 2 के साथ डिवाइड कर देंगे तो आ जाता है 20. बट ये पैटर्न सेकंड में फॉलो करना है कि नहीं, कर रहा है कि नहीं, हम देखेंगे. 11 + 16 कितना आ जाता है? 27. 27 + 10 37. 37 + 13 ये आ जाता है आपका 50. और 50 डिवाइडेड बाय 2 करने के बाद हम पाते हैं बिटवीन टू नंबर. तो अगर दो फिगर में ये वाला पैटर्न फॉलो कर ले रहा है, सो वी विल ट्राई इन द नेक्स्ट पैटर्न. So procedure, first figure, that means 10 + 9 + 14 + 7, ये आ जाता है आपका 40. जैसे हम 2 के साथ डिवाइड करते हैं 40 को, तो बिटवीन नंबर 20 मिलता है हमें. ओके. सो लेट्स ट्राई इन द सेकंड फिगर. सेकंड फिगर में क्या करेंगे हम? 11 + 16 + 13 + 10 जैसे कर देते हैं, ये आ जाता है आपका 50. When we divided it by 2, we get the between number 25. So answer will be follow the same pattern. That means 15 + 10 + 12
प्लस ये वाला आपका जो क्वेश्चन मार्क होता है, उसके बाद उसे 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो बिटवीन नंबर 22 आएगा। ओके, दैट मीन्स व्हेन वी ऐड 15 प्लस 10 25, ये आपका 12 आ जाता है 37 प्लस डैश। 2 को लेकर अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 22 के साथ तो ये हो जाता है 44। सो तो क्वेश्चन मार्क और आवर आंसर इज 44 माइनस 37। 44 माइनस 37 कितना आ जाता है? 7 आ जाता है। सो हियर आंसर इज ऑप्शन बी। दैट मीन्स आंसर इज 7 एंड द आंसर इज ऑप्शन बी। समझ में आया सबको? ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जैसे टी को हम उल्टा कर देते हैं उस वाले जैसा क्वेश्चन है। मतलब देयर इज अ पैटर्न बिटवीन नंबर निकालने के लिए। यहाँ पर बिटवीन नंबर कितना है समझिए फर्स्ट। 32 कितना है? 32। जैसे हम मतलब 6 को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 6 जा कितना आ जाता है? 42। तो यहाँ पर दिया है 32। बट इस दिस क्वेश्चन में हम पैटर्न फॉलो करेंगे 5 इंटू 6 प्लस 2, दैट मीन्स 32। मतलब 6 के साथ 5 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, अपर नंबर एंड द बिलो नंबर 30, उसके बाद दो जोड़ देंगे तो ये 32 आ जाएगा। बट इन दिस क्वेश्चन देयर इज अ नेक्स्ट पैटर्न। अगर 6 के साथ 7 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 7 जा 42, उसके साथ 2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 44। दैट मीन्स दैट 6 मल्टीप्लाइड विद 7 42 प्लस 2 इक्वल टू 44। इन द सेम वे हम 5 को 7 के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पहले अपर वाला नंबर, पहले 5 इंटू 6 पैटर्न, उसके बाद प्लस 2, उसके बाद 6 इंटू 7 प्लस 2, उसके बाद लास्ट रहेगा आपका 5 इंटू 7 प्लस 2। सो योर आंसर विल बी 5 multiplied by 7 35 plus 2 37. So which is the correct answer? 37 is the correct answer. Got it? So answer is 37, that is option D. Okay, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं। इन दिस क्वेश्चन देयर इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये वाला क्वेश्चन को कहते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में क्या होता है? आइदर कॉलम वाइज फॉलो करता है पैटर्न और रो वाइज फॉलो करता है। ये आपका देखिए, ये रो वाइज पैटर्न और कॉलम वाइज पैटर्न, दैट मीन्स इट्स रो वाइज, इट्स कॉलम वाइज। इस क्वेश्चन में हम देखेंगे आइदर इट्स रो वाइज फॉलो करता है या कॉलम वाइज। हियर 3 एंड 5, 3 प्लस 5 8 बाई 2 4 आ जाता है आपका। 6 प्लस 8 14 बाई 2 7 आ जाता है आपका। 8 प्लस 4 12 डिवाइड टू 6 आ जाता है आपका। तो ये कॉलम वाइज पैटर्न फॉलो कर रहा है। मतलब जैसे 3 से हम 5 को जोड़ के उसके बाद डिवाइडेड बाय 2, उसके बाद डिवाइड 2 करने के बाद आपका बिलो नंबर आता है 8 डिवाइड 4 इक्वल, सॉरी 8 डिवाइड 2 इक्वल टू 4 आता है। दैट मीन्स ये दो नंबर को हम प्लस कर देंगे, जो आंसर निकलेगा उसके साथ अगर हम 4 को डिवाइड कर देंगे और 2 डिवाइड करेंगे तो 4 मिलेगा। सो इन द सेम वे लास्ट सेकंड पैटर्न, सेकंड कॉलम 6 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स 6 प्लस 8 14 आ जाता है आपका। व्हेन इट डिवाइडेड बाय 2 इट गिव्स 7, दैट मीन्स दैट बिलो नंबर। सो लास्ट आंसर पैटर्न भी सेम फॉलो करेगा आपका। 8 प्लस 4 इक्वल कितना हो जाता है? 12, और डिवाइडेड बाय 2 करने के बाद आपको बिलो नंबर आएगा 6, दैट इज ऑप्शन ए। सो विच इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन ए। समझ में आया सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन ज्यादातर ओलंपियाड एग्जाम में आता है आपका। सिल्वर जोन में जितना आता है, सॉप में भी आता है। अगर आप आईएमओ दे रहे हैं, इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, या सिल्वर जोन या आईपीएम या एनएसओ वगैरह, एनसीओ जो भी दे रहे हैं उसमें आएगा ये वाला क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन आता है। मतलब ये पैटर्न थोड़ा स्क्वायर पैटर्न है, गौर से समझो। 1 5 4 3, एक 1 3 4 5 को कोई सा भी एडिशन या मल्टीप्लिकेशन करने से 510 नहीं आता है। देखिए, एक 1 इंटू 5 5 4 जा 23 जा 60, अगर ऐड करेंगे तो 5 1 6 प्लस 4 10, 10 3 आपका आ जाता है 13, नहीं आएगा। बट
इफ देयर इज अ लार्जर नंबर ऑलवेज फॉलो द स्क्वायर पैटर्न। जैसे मान लीजिए आपका 1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल आउटसाइड नंबर, यह आपका कितना आ जाता है बोलिए? 1 प्लस 25 और ये आ जाता है आपका 4 4 जा 16, 3 3 जा 9। ये आपका आंसर आ गया 25 प्लस 10 आपका आ गया 35, 45, 6, 51। But there is a zero another here, 510. When by multiplied with 10, it becomes 510. देखते हैं ये वाला पैटर्न सेकंड फिगर में फॉलो करता है कि नहीं। सेकंड फिगर में क्या होता है आपका 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, यह आ जाता है आपका 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 और स्क्वायर इक्वल टू 16, 6 6 जा 36। ये आपका सम आ जाता है 65। कितना आ जाता है? 65। उसमें अगर हम 10 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 650 आता है, जो कि बिटवीन वाला नंबर 615 है। सो ये दो तरह, एक तरह का पैटर्न दोनों फिगर में आ गया आसानी से। सो लेट्स ट्राई द लास्ट फिगर। 0 स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, दैट मीन्स ये वाला आ गया 0 1, ये आ गया आपका 4, ये आ गया आपका 64, 68 1 69 आ गया आपका। अब इसमें क्या करेंगे हम? 10 मल्टीप्लाई कर देंगे, बिकॉज सब पैटर्न में 10 मल्टीप्लाई हुआ है, दैट मीन्स 690। एंड विच इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन डी, 690 इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट? चलिए दूसरे क्वेश्चन पर। ये ट्रायंगल पैटर्न में आपको बाहर का जो मतलब आउटसाइड नंबर है लाइक 5 6 4, ये सबको कुछ भी करके हमको 12 निकालना है। कितना निकालना है? 12 जो इनसाइड नंबर है, ये वाला नंबर जैसे निकालना है। अगर हम 5 इंटू 6 30 कर देते हैं, 34 जा 120, 120 में डिवाइड 10, उसमें पहला वाला क्वेश्चन जो पिछला वाला क्वेश्चन था क्या होता था, उसमें 10 मल्टीप्लाई करने के बाद बिटवीन नंबर आता था। लेकिन यहाँ पर हम पैटर्न डिराइव किए कि आउट वाले नंबर जो आउटसाइड नंबर है उसे मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड 10 कर देंगे, तब भी ये 20 का नंबर आएगा। समझ में आ रहा है ना निकी? ये सेकंड वाला पैटर्न देखते हैं। ये हो गया आपका 6 इंटू 7 42, 42 इंटू 5 ये आपका 210। उसमें अगर 10 डिवाइड कर देते हैं तो बिटवीन नंबर 20 आ जाता है, 21 आ जाता है। दैट मीन्स द पैटर्न इज 5 इंटू 4 इंटू 6 इन द फर्स्ट फिगर। 5 इंटू 4 इंटू 6 याद आ जाए कितना? 120। उसमें अगर हम 10 डिवाइड कर देते हैं तो बीच वाला नंबर आ जाता है, सॉरी कितना आ जाता है? 12। सेकंड फिगर में 6 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 5, यह आपका आ जाता है 210। उसमें अगर हम 10 डिवाइड करते हैं तो ये 21 आता है। सो वी कुड फॉलो द लास्ट फिगर इन द सिमिलरली, दैट मीन्स 4 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 10, दैट मीन्स 320। उसमें हमें क्या करना पड़ेगा? 10 डिवाइड करना पड़ेगा, दैट मीन्स द आंसर विल बी 32। एंड द बीच वाला जो आंसर आएगा, ये वाला मिडिल वाला आंसर आपका 32 आएगा। कितना आएगा? 32। क्लियर? इट्स प्लीज मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, लाइक शेयर। ओके, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हो तो क्विकली सब्सक्राइब करो, प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट और द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा वाला क्वेश्चन। ये क्या होता है? आपका जो ऊपर वाला जो नंबर है, जैसे यहाँ पर देखो क्या क्या नंबर है, 13 एंड अनदर नंबर इज 15। इसे क्या करके हमें 28 निकालना है। ये तो इजी वाला क्वेश्चन है। दैट मीन्स व्हेन वी ऐड 13 प्लस 15 इट विल बिकम 28। देखते हैं सेकंड में ये फॉलो करेगा कि नहीं। दैट मीन्स 36 प्लस 54 कर देते हैं तो ये 90 आ जाता है, जो वाला बिटवीन वाला नंबर। कितना? 36 एंड 54 को जोड़ने के बाद, ठीक है ना। और ये सबसे सस्ता और इजी क्वेश्चन है। 45 को 63 से ऐड कर देंगे, कितना आ जाता है आपका? 108 एंड दैट विल बी योर आंसर ऑप्शन सी। गॉट इट? करेक्ट। ये आपका इजी लेवल आएगा।
कौन सा वाला लेबल आएगा, इजी आएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर, विच वन विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। जैसे जो स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन था ना, एक रो वाइज और कॉलम वाइज, यहाँ पर भी वैसा ही है। आप अगर फर्स्ट 3 नंबर को कुछ भी करके मतलब सिंप्लीफाई, आइदर ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड, वी हैव टू फाइंड आउट द आंसर इज मस्ट बी 4। यहाँ पर क्या करेंगे हम, अगर 3 + 4 कितना आ जाता है, 7 + 8 15 होता नहीं है। 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आता है 12। 12 से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बिटवीन वाला नंबर, लास्ट वाला नंबर 4 आएगा। बट ये सेकेंड रो में फॉलो करना चाहिए, मतलब 2 5 जा 10, 10 को सब्ट्रैक्ट कर दे, 10 - 4 6, हाँ वी गेट द लास्ट नंबर। सो पैटर्न डिराइव हो गया। पैटर्न क्या होता है, यहाँ पर देखिए आपका, अगर 3 × 4 कितना आ जाता है आपका 12, माइनस थर्ड नंबर इक्वल टू लास्ट नंबर, 12 - 8 इक्वल टू लास्ट नंबर 4। गॉट इट। सो सेकंड फिगर में भी आपका 2 × 5 10, -4 करने के बाद आपका लास्ट नंबर आ गया 6। सो वी कुड फॉलो सेम पैटर्न इन द लास्ट फिगर। 4 × 5 कितना आ जाता है 20, 20 - 9 आ जाता है आपका 11। कैसे हुआ आपका 20 - 9 इक्वल टू 11। सो विच इज द करेक्ट आंसर, हाँ ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सो ये वाला क्वेश्चन आपका मीडियम मॉडरेट लेवल आता है। क्या होता है, मॉडरेट लेवल। ओके, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं। विच वन विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर कितना नंबर है, देखिए एक फिगर में 3 नंबर है, 4 9 6, दैट मीन्स 4 9 6। सो ये कैसे पैटर्न, ज्यादातर ये वाला क्वेश्चन स्क्वायर या क्यूब पैटर्न में आता है। यहाँ पर देखिए 4 9, ये बन जाता है कितना 6। सो अगर हम 4 8 9 कितना होता है 13, 13 से कुछ भी करके हम 6 नहीं निकाल सकते। 4 -9 4 नहीं, ये अगर हम 4 × 9 करते हैं तो ये कितना आ जाता है 36। सो 36 का रूट क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 36 इक्वल टू 6। छोटे बच्चों के लिए ये पैटर्न आएगा आपका, 4 × 9 हो जाता है आपका 36। तो 36 किसको मल्टीप्लाई करने थे, जो बिलो नंबर होता है ना उसका स्क्वायर, 6 × 6, दैट मीन्स 6 × 6 इक्वल टू 36। तो root over of upper two number is below number. So in the next 9 × 16, उसका हम root over निकालेंगे। 9 का root over कितना हो जाता है, that means √9 × √16। so √9 इक्वल टू 3, √16 होता है आपका 4, 3 4 जा 12। ये बिलो वाला नंबर आ गया, ये 12। ठीक है, रूट ओवर करने के बाद किसे 9 × 16 को रूट ओवर करने के बाद। सो सिमिलरली we can find the value of the last, that means 16 multiplied by question mark, इसका जो रूट ओवर होगा वो कितना आएगा 20 आएगा। कितना आएगा 20 आएगा। that means 16 multiplied by question mark, जब हम रूट ओवर को राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करेंगे तो सॉरी, ये आपका क्या जो हो जाएगा, एक मिनट, रूट ओवर को ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड तो ये आपका स्क्वायर हो जाएगा। दैट मीन्स 16 मल्टीप्लाइड बाय क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 20 स्क्वायर इक्वल टू 400। दैट मीन्स द क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाय 16। सो ये आपका कितना आ जाएगा 400 डिवाइड 16 25 आएगा। कितना आएगा 25। ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ओके, बट मॉडरेट ऑल्सो। छोटे बच्चों के लिए स्क्वायर अगर जिसको मालूम नहीं है तो क्या करेंगे, वो बिलो नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। दैट मीन्स 16 × क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 20 × 20। क्लियर। सो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 20 × 20 डिवाइडेड बाय 16। ये आपका 400 डिवाइड 16 आ जाता है, तो आप 25 निकाल सकते हैं इससे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये ज्यादातर क्या होता है ना, लॉजिकली अरेंज होता है। लॉजिकली मतलब आपका देखिए 915 आ जाता है अपर वाला, बिलो वाला 364 आ जाता है। तो अगर 3 डिजिट नंबर पकड़ के चलेंगे, 3 डिजिट नंबर, दैट मीन्स 915, ये आपका आ गया 364।
915 माइनस 364। अगर हमें इसे सब्ट्रैक्ट करना है तो कितना आ जाता है? 5 4 1, 11 6 5, 8 5, 551। ये दूसरे वाले फिगर में फॉलो करता है कि नहीं हम चेक करेंगे। ये 543 आ गया और ये आपका अपर वाला ग्रेटर नंबर आता जाता है 789 9368478। ये आपका 246, जो कि ये बीच वाला नंबर है 256 46। इसमें जो 551 आया ये भी बीच वाला नंबर है, ठीक है ना। तो लास्ट में हम फॉलो करेंगे, दैट मीन्स 863 माइनस 241। 3 1 2, 6 4 8 6, 622 विल बी योर आंसर। कितना आता है ये वाला क्वेश्चन आंसर? 622। गॉट इट। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं। फिर से मैट्रिक वाला क्वेश्चन आ गया। ये भी कुछ पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। देखिए थर्ड, यहाँ पर 4 है 8 है, 4 8 जा 32 प्लस 1 करने के बाद ये आ जाता है 33। अगर लास्ट वाला ये फॉलो करेंगे 5 मल्टीप्लाइड बाय 9, 45 प्लस 1 करने से 46 आ जाता है। दैट मीन्स द कॉलम वाइज, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फर्स्ट सेकंड कॉलम एंड लास्ट थर्ड कॉलम। गॉट इट। फर्स्ट कॉलम में क्या होता है ना, 4 मल्टीप्लाइड बाय 8, दैट मीन्स ये जाता है आपका 32। उसके बाद अगर एक जोड़ देते हैं और ऐड कर देते हैं तो इट विल बिकम 33। लास्ट वाला फिगर 5 मल्टीप्लाइड बाय 9, ये कितना हो जाता है आपका 45। 45 में अगर एक जोड़ देते हैं ये 46 हो जाता है, जो कि ये बीच वाला नंबर है कॉलम में। सो इन द सेम वे लास्ट सेकंड कॉलम यहाँ पर समझाता हूँ। 7 के साथ किसे मल्टीप्लाई करो और उसके बाद प्लस 1 करने के बाद आपका बीच का नंबर 78 आएगा। सो प्लस 1 पहले माइनस कर देते हैं। 7 इंटू क्वेश्चन बॉक्स इक्वल टू, यहाँ पर जो एडिशन हुआ है 1, उसे सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपका आ जाता है 77 एंड दैट इज मल्टीप्लायर, sorry, multiplicand multiplier, this is product. So multiplier equal to 77 divided by multiplicand 7, that means 11. Clear? So which is the correct answer? Option C. Got it? Next question. ये भी इस टाइप का क्वेश्चन स्क्वायर या क्यूब में फॉलो करता है। देखिए 2 को 4 से जोड़ते हैं 6 होता है, 20 हो नहीं पा रहा है। 2 4 8 20 नहीं हो पा रहा है। बट अगर हम 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 स्क्वायर, यह आ जाता है आपका 4 स्क्वायर, 2 2 जा 4 और 4 जा 16। इसे जोड़ने के बाद हम बीच जो बिलो नंबर है 20 वो निकलता है। सेकंड फिगर में ऐसे वैसे ही करेंगे, 3 स्क्वायर एंड 9 स्क्वायर, 3 3 जा 9, 9 9 जा 81। इस दो आंसर को अगर जोड़ देते हैं तो ये बिलो वाला नंबर 90 हो जाता है। सो इन द लास्ट 1 स्क्वायर, ये आ जाता है आपका 5 स्क्वायर, ये 1 है, ये 5 है, 1 स्क्वायर इक्वल टू 1, 5 स्क्वायर इक्वल टू 25। तो ये आपका आंसर आ जाता है 26, विच इज द करेक्ट आंसर एंड दैट इज ऑप्शन बी। गॉट इट। लेट्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला जो क्वेश्चन है ज्यादातर ओलंपियाड एग्जाम में आता है आपका। ये आइदर स्क्वायर, क्यूबिक और पावर 4 वाला ऑप्शन फॉलो करता है। देखिए यहाँ पर 2 है, उसके बाद एक नंबर स्किप है, मतलब क्वेश्चन मार्क, उसके बाद सीधे 16 आ जाता है। तो अगर 2 8 जा 16 करते हैं, 250 से 8 डिवाइड कर लेंगे। कितना डिवाइड कर लेंगे हम? 8। 8 3 जा 24, यह आ जाता है आपका 16, 8 2 जा 16। ये डायरेक्टली 32 आ रहा है। कितना आ रहा है? 32 आ रहा है। बट ये वाले ऑप्शन फॉलो करेगा कि नहीं, हम दूसरे टाइप एंगल से देखते हैं। 32 तो ऑप्शन में है, अगर स्क्वायर पैटर्न करते हैं, ये आपका 2 नहीं आता है, ठीक है। हाँ ये तो डायरेक्टली ये वाला आंसर आ गया, जस्ट मल्टीप्लाई, और ये स्क्वायर पैटर्न ऑल्सो होता है। टू 8 जा 16, 32 8 जा आ जाता है, 8 2 जा 16, 16 वाला 1,
8 3 24 और 256। ये दो आंसर होगा ये क्वेश्चन का, एक 32 आएगा और एक आएगा आपका, देखिए ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है, नहीं नहीं नहीं, ये 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया, ये अगर हम 16 का स्क्वायर निकालते हैं, 4 का स्क्वायर 16 आ जाता है उसके बाद, हाँ ये होता है 2 स्क्वायर इक्वल 4 आता है, क्लियर। 4 किसका स्क्वायर है, ये जो वाला 16 नंबर है ये 4 का स्क्वायर आ जाता है। इन द सेम वे अगर हम 4 का स्क्वायर निकालेंगे, 4 का स्क्वायर नंबर कितना आता है 16, और ये 16 का स्क्वायर नंबर निकालेंगे तो कितना आ जाता है 256। सो 4 ऑल्सो भी पॉसिबल, क्लियर। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर, ये आइदर क्यूबिक पैटर्न, अगर क्यूब पैटर्न फॉलो हो रहा है, देखिए आपका यहाँ पर ये अगर मान लीजिए ये आपका नंबर 1 और 1 है यहाँ पर, उसके बाद ये यहाँ पर 3 और 27 है, ये आपका 3 और 27, तो नेक्स्ट बाय नेक्स्ट फॉलो कर रहा है। देखिए 3 का स्क्वायर कितना आता है, ये दो नंबर देखिए 3 स्क्वायर क्यूब, अच्छा 3 टू द पावर 3 इक्वल टू 27 आ जाता है आपका, ओके। ये दोनों में आप 1 टू द पावर 3 ऑल्सो 1, 7 और 343, ये भी 7 टू द पावर 3 इक्वल टू 243। देखिए सक्सीडिंग क्यूबिक नंबर आ रहा है आपका, सो लास्ट ये वाला कितना आएगा 5 टू द पावर 3 इक्वल टू 125। और एक बार समझाता हूँ, देखिए ये देखिए पहले यहाँ पर जो नंबर है 1 एंड 1, यहाँ पर आ जाता है 343, यहाँ पर आ जाता है आपका 7, ये आ जाता है क्वेश्चन मार्क, ये आ जाता है 5, ये आ जाता है 27 और यहाँ पर 3। 3 और 27 में रिलेशनशिप क्या आता है 3 टू द पावर 3 क्यूबिक पावर इक्वल टू 27। 1 एंड 1 में आ जाता है आपका 1 टू द पावर 3 ऑल्सो 1, 7 और 343, 7 to the power 3 also to 343. So in the same way 5 to the power 3 equal to 125 will be the succeeding number, clear. So which is the correct answer, option C। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं, ये वाला आपका क्वेश्चन आ गया 30 48 24 और आ जाता है 12 88 88 23 92 48 डैश। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, मतलब 30 48 24 को कैसे समझेंगे एक पैटर्न में। देखिए फर्स्ट फिगर में क्या होता है, पहले अगर हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 30 माइनस 24, ये कितना आ जाता है 6 आया, कितना आया 30 माइनस 24 इक्वल टू 6। उसके बाद अगर हम 8 कर देते हैं तो ये जो लास्ट लेफ्ट वाला नंबर है 48 आ जाता है। दैट मीन्स 30 24 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 6, 6 में अगर हम 8 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 48 आ जाता है। चलिए देखते हैं सेकंड में ये फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। इसमें क्या होगा आपका 23 माइनस 12 कर देंगे, 23 माइनस 12, दैट मीन्स ये दो नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाता है ये आपका 12 20, नहीं नहीं सॉरी, ये आपका 11 आ गया, इसके साथ 11 आता है, उसके साथ अगर 8 मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए सभी में 8 मल्टीप्लाई किया जा रहा है, मतलब सेम पैटर्न, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड नंबर 88 आ जाता है। लास्ट में क्या होगा आपको 48 के साथ किसे अगर हम सब्ट्रैक्ट, 92 है ये वाला नंबर, उसके साथ क्वेश्चन मार्क सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, दैट मीन्स 92 माइनस क्वेश्चन मार्क, उसके साथ जो भी आंसर आएगा उसके साथ 8 मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलना चाहिए 48, जो कि ये लेफ्ट हैंड साइड नंबर है। बट 8, तो 8 अगर हम डिवाइड कर लेंगे यहाँ लेके तो कितना आ जाता है 6 आ जाता है, देन 92 माइनस 6 हो जाता है कितना 88। दैट मीन्स यहाँ पर समझाता हूँ और एक बार देखिए, अगर 92 माइनस क्वेश्चन मार्क जो है उसके साथ हम 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट का जो साइड नंबर है 48 निकलेगा। दैट मीन्स फर्स्ट अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल 92 माइनस बॉक्स मल्टीप्लाई, ओके 8 को डिवाइड कर लेंगे, 48 डिवाइड 8 कितना आ जाता है 6, ये दो को हम डिवाइड कर लेंगे बिकॉज लेफ्ट में मल्टीप्लिकेशन हुआ है, व्हेन इट ट्रांसफर टू राइट हैंड साइड इट विल डिवाइड, दैट मीन्स 92 माइनस बॉक्स इक्वल टू 6। तो ये आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला फॉलो आ गया, ये सब सब्ट्रैक्ट निकालेंगे, दैट मीन्स द क्वेश्चन मार्क इक्वल टू डिफरेंस
माइनस सॉरी मिनिमम माइनस डिफरेंस 86 आता है आपका आंसर। कितना आ जाता है 86। दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।